السلام علیکم دوستو، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں عنایت اللہ کی جنگی سرگزشت، منزل اور مسافر، قسط نمبر 55۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ فصیح نے جب یہ ساری باتیں سنی تو وہ طیش میں آ گیا۔ اس نے پہلے تو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہا جنہوں نے اندھا دھند اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں طے کر دیا تھا، پھر یہ فیصلہ سنایا کہ اس کی بہن اس وقت تک سسرال نہیں جائے گی جب تک ادھر سے اسے کوئی لینے نہیں آتا۔ ادھر سے کوئی لینے نہیں آئے گا، باپ نے فصیح سے کہا۔ اس کی ایک وجہ جو میں تمہیں ابھی تک نہیں بتائی، اب سن لو۔ میں بیٹی کے سسرال گیا تھا۔ اس کے سسر بڑے روب سے مجھے کہا کہ بیٹی کو بھیج دو ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ روب میں آیا ہوا ہے تو میں نے بھی روب سے بات کر کہا کہ تم نے ہمیں دھوکہ دے کر پہلے یہ نہیں بتایا کہ تمہارا بیٹا ذہنی مریض ہے۔ یہ سن کر اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میری بیٹی کو طلاق دے دو کیونکہ تمہارا بیٹا کسی بھی پہلو سے خامد بننے کے قابل نہیں اور میں اپنی بیٹی کی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے کہا کہ ہم طلاق نہیں دیں گے، بیٹی کو گھر بٹھائے رکھو۔ میں نے کوئی اور بات نہ کی اور واپس آ گیا۔ فصیح نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ بہن کو طلاق دلوائے گا، لیکن اس نے یہ بھی سوچ لیا کہ یہ کام روب اور للکار سے یا لڑائی جھگڑے سے نہیں ہوگا۔ یہ تو میں نے دیکھا کہ حالات کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہو جاتے، وہ بڑے ٹھنڈے دل اور دماغ کو اپنے قابو میں رکھ کر سوچتا اور فیصلہ کیا کرتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے اپنی بہن کو طلاق دلوانے کے لیے جذبات اور غصے سے نہیں، عقل سے ہی کام لیا ہوگا۔ ایک تو اسے غصہ ان میاں بیوی پر تھا جنہوں نے آ کر اس کے والدین کو سبز باغ دکھائے، جھوٹ بولے اور انہیں اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے بیٹی کا رشتہ وہاں دے دیا، لیکن ان پر غصہ اتارنا بعد کا کام تھا، پہلا کام تھا بہن کو طلاق دلوانا۔ اس نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ بات کی، اس کے دوست بھی اس جیسے عقل والے تھے۔ ان میں سے ایک کے رشتہ دار اس گاؤں میں رہتے تھے جس گاؤں میں فصیح کی بہن بیاہی گئی تھی۔ اس نے فصیح کو بتایا کہ وہ اس گاؤں میں جا کر پہلے تو یہ پتہ کرے گا کہ اس لڑکے میں نقص کیا ہے۔ اس نے یہ رائے دی تھی کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا نقص نہ ہو اور کوئی وجہ ہو تم بیوی کو پسند نہیں کرتا۔ فصیح نے یہ بات مان لی اور دوست سے کہا کہ وہ اس روز چلا جائے۔ اس دوست نے واپس آ کر جو بات سنائی وہ کوئی عجیب نہیں تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ لڑکا دو بہنوں میں اکلوتا تھا، اس کے بعد ان کے ہاں کوئی بیٹا نہ ہوا۔ باپ نے اس بیٹے کو بڑا ہونے نہیں دیا، ہر وقت اٹھائے رکھتے اور اس کی ہر بات مانتے تھے۔ ذرا آنکھوں سے اوجل ہو تو ماں پریشان ہو کر دوڑ پڑی اور جہاں کہیں سے دیکھا اٹھا کر گھر لے آئی۔ اس عمر میں بھی ماں کا رویہ ویسا ہی تھا جیسے اس کا یہ بیٹا ابھی دودھ پیتا بچہ ہو۔ ماں نے اس میں مردان کی پیدا نہیں ہونے دی۔ یہ رویہ باپ کا تھا۔ امیر کبیر گھرانہ تھا، اس لیے نوکروں کی اور بیگار پر کام کرنے والوں کی کمی نہیں تھی۔ بیٹے کو ماں باپ نے نہ کوئی ذمہ داری دی نہ اسے کوئی ذمہ داری لینے دی۔ وہ اگر مردوں کی طرح خود اعتمادی کے ساتھ بات کرتا تو ماں کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ بچوں جیسی باتیں کیا کرے۔ یہ رائے اور یہ تجزیہ ایک پڑھے لکھے آدمی نے کیا تھا اور اس نے فصیح کے اس دوست کو بتایا تھا۔ دیہاتی لوگ اس قسم کا تجزیہ نہیں کر سکتے۔ کسی کا بیٹا اس طرح نکل آئے تو وہ نفسیاتی تجزیہ نہیں کرایا کرتے بلکہ اپنے پیر کے پاس لے کر چلے جاتے ہیں یا انہیں کوئی شاجی مل جاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ بیٹے کو معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے کہ بچوں کی سی باتیں کرتا ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا۔ پھر پیر صاحب یا شاہ جی یہ تشخیص کرتے ہیں کہ اس پر اسیبی اثر ہے یا اس پر سایہ ہے یا یہ کہ کسی دشمن نے اس پر الٹے تعویذ کرائے ہیں۔ فصیح کا یہ دوست بھی میٹرک پاس تھا اور عقل رکھتا تھا۔ اس نے دو تین اور آدمیوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے بھی بائی لی، سب نے یہی رائے دی کہ لڑکا پاگل ہے۔ اس دوست نے فصیح کو بتایا کہ اس نے لڑکے کی سدھرنے کا یعنی نارمل ذہنی حالت میں آنے کا کوئی امکان نہیں۔ وہ کہتا تھا کہ اس لڑکے پر ایسا پردہ پڑا ہوا ہے کہ کسی کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ شخص ذہنی طور پر معذور ہے۔ وہ خود تو اتنا زیادہ بولتا ہی نہیں تھا، دوسرے کی بات کرتے تو مسکرا کر ادھورا سا جواب دیتا اور ہنسنے لگتا۔ ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی جو اسے جھلا سمجھتے تھے۔ بہرحال دوست نے فصیح سے کہا کہ جس طرح بھی ہو خواہ عدالت میں جانا پڑے اس سے طلاق لو ورنہ فصیح کی بہن کا باقی عمر گھر بیٹھی کٹتی رہے گی۔ فصیح کے لیے مسئلہ ایسا بن گیا کہ جس کا اسے کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اپنی اس بہن پر اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ صلاح مشورہ کیا اور پھر اس کے دو دوست تھے جو سکھ تھے۔ وہ سکھوں کی اکثریت کا علاقہ تھا۔ سکھ اور مسلمان آپس میں ٹھیک ٹھاک سلوک اور اتفاق سے رہتے تھے۔ یہ تو 1947 میں سکھ ہندوؤں کی باتوں میں آ گئے اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، ورنہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے تھے، بلکہ ہندوؤں کی نسبت مسلمانوں کو تو سکھ اپنا دوست اور ہمدرد سمجھتے تھے۔
इन सिख दोस्तों ने भी फंसी से कहा कि तलाक लेने की कोई तरकीब सोचें। इन दोनों सिखों में एक फंसी का ज्यादा ही गहरा दोस्त था। इसने फंसी से अलायदगी में कहा कि वो हर तरह की मदद को तैयार है और अगर नौबत लड़ाई मार कुटाई तक पहुंच गई तो अपने आदमी साथ ले आएगा और फंसी का साथ देगा। फंसी लड़ाई मार कुटाई का कायल नहीं था। इसका ये मतलब नहीं था कि वो अमन पसंद था और लड़के से डरता था, बल्कि मतलब ये था कि वो लड़ने मरने की बजाय उस्तादी से तलाक हासिल करना चाहता था। जब फसी ने मुझे किस्सा सुना रहा था तो मैं जरा भी हैरान नहीं हो रहा था और मुझे उम्मीद थी कि मेरी ये तहरीर पढ़ने वाले भी हैरान नहीं होंगे। हमारे मुआशरे में दस्तूर है कि अपने बेटे को ब्याहना है तो खा वो शादी के काबिल हो या नहीं, लड़का निकम्मा हो, निकट्टू हो, नशई हो या पागल ही क्यों ना हो, लड़की वालों को धोखे में रखा जाता है और एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। यूं भी होता है कि कोई नौजवान ज़हनी तौर पर इस तरह माजूर है कि हर वक्त डिप्रेशन में रहता है और कोई काम नहीं करता और ना ही किसी की सुनता है, तो डॉक्टर या हकीम को आमिल कोई इस इलाज बताता है कि इसकी शादी कर दी जाए तो ये ठीक हो जाएगा। ऐसे लड़कों की शादियां अमूमन फरेबकारी के जरिए कराई जाती हैं। रिश्ते कराने वाली माइयां ऐसे रिश्ते पक्के कराने में खास रोल अदा करती है और मुंह मांगी उजरत वसूल कर लेती है। ऐसे जहनी मरीज लड़कों की शादी का बाद में इंजाम यह होता है कि पहले तो वो अकेला बर्बाद रहता है, इसके बाद एक लड़की भी इसके साथ बंधी तबाह बर्बाद होती रहती है। हम इस वक्त अपने वतन से थोड़ी दूर नहीं बल्कि बहुत ही दूर समंदर में एक गनपोर्ट पर जा रहे थे। मेरे और मेरे वतन के दरमियान दो मुल्क हायल थे, एक बर्मा और दूसरा हिंदुस्तान। लेकिन फजी मुझे किस्सा ऐसे पूरे असर अंदाज से सुना रहा था कि मैं अपने वतन पहुंच गया और यूं लगा जैसे मैं एक फिल्म देख रहा हूं। किस्सा तो दर्दनाक और अफसोसनाक था, लेकिन इसने मुझे और मेरे मुआशरे में पहुंचा दिया। दोस्तों ने फसी को ये मशवरा दिया कि एक बार खुद अपनी बहन के ससुर से मिले और इनके साथ सुलह सफाई के अंदाज में बात कर देखे कि इनका रवैया क्या है। हो सकता है वो तलाक देने पर राजी हो जाए। फसी की छुट्टी सिर्फ एक महीना थी और एक हफ्ता गुजर गया था। वो अगले ही रोज बहन के ससुराल चला गया। फसी ने अपनी बहन के ससुर के साथ खुददारी से बात की और कहा कि वो अगर अपने बेटे का कोई इलाज करवा ले तो फसी खुद अपनी बहन को यहाँ छोड़ जाएगा। ससुर ने ये बात सुनी तो वो गुस्से में आ गया। वो ये अल्फाज तो सुनता ही नहीं चाहता था कि इसका बेटा जहनी मरीज है। इसने फसी को डांटा और धमकियां भी दी। फसी ने इसका ये सलूक बर्दाश्त किया और इसकी मिन्नतें की कि इसकी बहन के हाल पर रहम करे, इससे तलाक दे दे। तलाक तो हम सारी उम्र नहीं देंगे, ससुर ने कहा। जाओ और अपनी बहन को घर बिठाए रखो। अगर आज के बाद तलाक लेने आए तो तुम्हारी लाश वापस जाएगी। जब तक मेरा बेटा जिंदा है तलाक नहीं मिलेगी। फसी वहां से आ गया और अब जिसने महसूस किया कि वो भी दिमागी मरीज हो गया है। अपनी बहन के ससुर ने इसके साथ सलूक ऐसा बुरा किया था कि फसी का दिमाग किसी और रास्ते पर चल पड़ा। ससुर ने कहा था कि जब तक इसका बेटा जिंदा है तलाक नहीं मिलेगी। फसी ये सोचता हुआ घर आया कि ऐसा क्या तरीका इख्तियार किया जाए कि इसका बेटा ज्यादा दिन जिंदा न रह सके। फसी ने अपने मुसलमान दोस्तों को इतना ही बताया कि इसकी बहन के ससुर ने इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया और तलाक से साफ जवाब दे दिया है। लेकिन अपने दोनों सिख दोस्तों को इसने कोई और ही बात बताई। इसने एक तो अपनी बहन के ससुर का सलूक सुनाया और कहा कि वो इसके बेटे को जिंदा नहीं रहने देगा, लेकिन ऐसे कोई ऐसा तरीका नहीं सूझ रहा था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। इसका मतलब यह था कि अपनी बहन के खामिद को ऐसे तरीके से मारे कि किसी को पता न चल सके कि इसका कातिल कौन है। फसी ने यह बात अपने दोनों सिख दोस्तों के साथ इस वजह से की थी कि इस किस्म के खतरनाक फैसले सिख ही कर सकते थे। इसके सिख दोस्तों ने इसे कहा कि बात अगर सिर्फ कत्ल करने की होती तो वो दोस्ती का हक इस तरह अदा करते कि इस शख्स के गांव जाकर इसे कत्ल कर देते, लेकिन तरीका उस्तादों वाला इस्तेमाल करना है। दोनों सिख और फसी तरीके सोचते रहे। तीनों ने कोई नया नया तरीका बयान किया, लेकिन कोई ऐसा तरीका सामने नहीं आ रहा था जिससे कातिल का सुराग न मिलता। अचानक एक सिख के दिमाग में एक तरीका आ गया। थोड़ी सी रकम लगेगी, एक सिख दोस्त ने कहा। मैं एक सन्यासी को जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आजकल वो कहाँ है। ये लोगों के पास ऐसे जहर भी होते हैं जिनका एक कतरा जुबान पर रखो तो आदमी वहीं ढेर हो जाता है, लेकिन हमें जहर नहीं चाहिए। इससे ये होता है कि लाश का जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो साफ पता चल जाता है कि इसे जहर दिया गया है, फिर कातिल का सुराग भी मिल जाता है। सन्यासी से मैं पूछूंगा कि कोई ऐसा जहर दे जिसका असर आहिस्ता आहिस्ता हो, हाँ 1 महीना लग जाए या 2 महीने लग जाए, उम्मीद है कि ऐसा जहर मिल जाएगा। फसीने से कहा कि ऐसा जहर ला दो और सन्यासी जितने पैसे मांगे वो दे देगा। ये सिख किसी वक्त फसी को लेकर साथ चल पड़ा। आजकल तो पाकिस्तान में रहने वाले सन्यासियों को जानते ही नहीं। अंग्रेजों के वक्तों में सन्यासी जंगलों में रहते थे, ऐसी जड़ी बूटियां ढूंढ निकालते थे जिनसे आम लोग वाकिफ नहीं होते थे।
वो दवा बनाते थे, उनके पास हर मर्ज का इलाज होता था। मैंने सुना था कि इन सन्यासियों के पास सांपों और बिच्छुओं का जहर भी होता है। इस सिख को मालूम था कि ये सन्यासी कहाँ ठहरे हुए हैं। इन्होंने 3-3.5 मील दूर डेरे डाले हुए थे। वहां जा पहुंचे। बड़ा सन्यासी इस सिख को बड़ी अच्छी तरह जानता था। किसी को मालूम नहीं था कि उसका दोस्त को क्यों और किस तरह जानता है। बहरहाल इस सिख ने सन्यासी से कहा कि इसे जहर चाहिए तो आहिस्ता आहिस्ता असर करे और डॉक्टरों की शक न हो कि मरने वाले को क्या दिया गया है। सन्यासियों का आमदनी का जरिया यही था। सन्यासी ने कहा कि इसके पास ऐसा जहर है जो दूध और लस्सी या चाय में चंद कतरे डालकर पिला दो तो पीने वालों को पता नहीं चलता इसे जहर दिया गया है। 7-8 रोज बाद इसका जिगर खराब होने लगता है और इसे यरकान हो जाता है। वो किसी भी हकीम या डॉक्टर के पास चला जाए, इसे यही तशखीस मिलती है कि यरकान है। इस यरकान की दवाएं दी जाती है जिसका कुछ असर नहीं होता। 15-20 दिनों तक आदमी मर जाता है। सन्यासी महाराज, किसी ने कहा, हुक्म करें, क्या खिदमत करूं, मुझे ये जहर दे दें। उस सन्यासी ने 50 रुपए मांगे, जो फसी ने इसी वक्त दे दिए और सन्यासी ने थोड़ा सा पाउडर एक पुड़िया में लपेट कर फसी को दे दिया। मैंने कहा, सिर्फ 50 रुपए? ये 50 रुपए आजकल वाले नहीं थे। उस वक्त के 50 रुपए आज की करेंसी के मुताबिक कमोबेश 1500 रुपए के बराबर थे, बल्कि इससे भी ज्यादा। फसी जहर तो ले आया, लेकिन अभी और इसके सिख दोस्त ने सोचा ही नहीं था कि जहर फसी अपनी बहन के पागल खामिद को किस तरह दे। वो जब सन्यासी से जहर लेकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में यही सोचते आए कि ये जहर इसे किस तरह दिया जाए। यह तरीका फसी के दिमाग में आ गया। इसने यह तरीका अपने दोस्त को सुनाया तो दोस्त की तायद कर दी और कहा कि अब जो होता रहा है होता रहे, ये काम कर गुजरो। फसी अहमद ने एक दिन का वक्फा डाला और उससे अगले रोज घर वालों को बताए बगैर अपनी बहन के ससुराल चला गया और बहन के ससुर से मिला। ससुर के चेहरे पर पहले की तरह बल्कि पहले से भी ज्यादा रौनक के तासुरात आ गए। इसने पहली बात फसी से पूछी कि बहन को क्यों नहीं लाए। फसी बाकायदा प्लान बना के गया था। इसके मुताबिक वो ससुर के आगे इस तरह झुक गया जैसे इसका जरखरीद गुलाम हो और कोई बहुत बड़ी गलती कर बैठा हो। हम आपकी जूते में बैठने वाले लोग हैं, फसी ने कम तरीन बनकर कहा। हमने आपके घर अपनी बेटी दी हुई, इसलिए हमारे सर आपके आगे झुके रहने चाहिए। मैं आपका हर हुक्म बजा लाऊंगा, लेकिन एक गुजारिश मेरी भी सुन ले। फसी ने अपनी बहन के ससुर के साथ यही एक बात नहीं की थी, बल्कि वो जब बोलता था तो ससुर बीच में बोल पड़ता था। फसी फौरन चुप हो जाता और इस तरह तवज्जो से चौधरी की बात सुनने लगता जैसे चौधरी इस मुल्क का बादशाह हो। जब चौधरी अपनी बात खत्म करता तो फसी से पूछता कि चौधरी साहब, मुझे बोलने की इजाजत है। फसी के इस रवैये और अंदाज ने चौधरी को मोम कर दिया, लेकिन चौधरी अपनी जिद पर कायम रहा कि लड़की को मैके लाने के लिए इसका कोई आदमी औरत नहीं जाएगी, बल्कि लड़की को फसी या इसकी माँ या इसका बाप लेकर आएगा। चौधरी साहिब, फसी ने अर्ज करने के लहजे में कहा, मुझसे पहले आपकी इज्जत का ख्याल है। मैं ऐसा मुतालबा कभी नहीं करूंगा कि आपके घर का कोई नौकर भी लड़की लेने जाए। मेरी दरख्वास्त सिर्फ यह है कि मेरे माँ बाप की इज्जत का थोड़ा सा ख्याल करें। अगर आप मंजूर कर लें तो मैं एक अर्ज करता हूँ। आपका बेटा वैसे भी मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि इसे अपने साथ ले जाऊँ और आप ये समझें कि मैं इसे अपने प्यार और मोहब्बत की खातिर ले जा रहा हूँ। इसे एक रात अपने पास रखूंगा और अगले दिन मैं इसे और अपनी बहन को साथ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। इस तरह आपका हुक्म भी पूरा हो जाएगा और मेरे अब्बा की भी कोई इज्जत रह जाएगी। फसी ने इस बेवकूफ़ चौधरी को पहले ही मोम कर लिया था। फिर फसी ने गुलामों की जो एक्टिंग की थी वो भी काम कर गई। चौधरी से इजाज़त दे दी कि उसके बेटे को साथ ले जाए। इसने बेटे को बुलाया और कहा कि वो फसी के साथ इसके गांव चला जाए। जो ही फसी ने चौधरी के बेटे को यानी अपने बहन के खामिद को देखा, वो उठकर बड़ी बेताबी और प्यार से इसके गले लगाया और कहा कि वो तो इसे दिन रात याद आता रहता है वगैरह वगैरह। चौधरी का बेटा अपनी आदत या फितरत के मुताबिक कुछ झीपा और शर्माया, लेकिन इसने इसकी हौसला अफजाई की और फसी ने प्यार और मोहब्बत का बड़ा शदीद मुजाहरा किया तो बेटा तैयार हो गया। यहाँ यह कहना पड़ता है कि जिस काम ने होना होता है उसके लिए सबब बन जाते हैं। चौधरी के बेटे का फसी के साथ चल पड़ना मुमकिन नजर नहीं आता था, लेकिन वो फसी के साथ चल पड़ा। चौधरी का बेटा जब फसी के साथ इसके घर में दाखिल हुआ तो सब हैरान रह गए कि ये मौजा किस तरह हो गया है। इस लड़के के आने की वजह सिर्फ ये नहीं थी कि शर्मीला या जहनी मरीज था, बल्कि वजह यह थी कि जो मैंने पहले बयान की है, इसके बाप ने ऐलान कर रखा था कि फसी की बहन को ससुराल लाने के लिए कोई नहीं जाएगा। फसी के घर वालों को बताया नहीं था कि वो वहां गया था। चौधरी के बेटे की बहुत ही खातिर तवाज़ो की गई। फसी की बहन इसके आगे पीछे नौकरों की तरह फिरती रही। रात को फसी ने चौधरी के बेटे को अपने कमरे में सुलाया। रात सोने से पहले चौधरी के बेटे को दूध पेश किया गया। फसी ने नज़र बचाकर सन्यासी से लिया हुआ थोड़ा सा जहर इस दूध में डालकर हिला दिया। फसी ने अपनी माँ और बहन से कहा कि
वो इसे रात को दूध ज़रूर पिलाना। ये दोनों औरतें ये समझी होंगी कि ये भी खातिर तवाज़ु का एक हिस्सा है। चौधरी के बेटे ने दूध पी लिया। अगले ही रोज़ फसी ने अपनी बहन को और बहन के खामिद को साथ हुए बहन के ससुराल जा पहुंचा। ससुराल वाले बहुत खुश हुए कि चलो ये मसला हल हुआ। फसी फ़ौरन वापस आना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने इसे रात में ही रखा और अगले रोज़ आने की इजाज़त दी। फसी ने मुझे सुनाया कि इसने जब अपने घर में बहन से कहा था कि वो ससुराल चलने की तैयारी करे तो बहन बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो गई थी। इसका अपना भाई इसे घर से धकेल रहा था। इस भाई पर तो इसे बहुत ही नाज था और भाई ने इसकी हौसला अफजाई इस फैसले से की थी कि इसे तलाक दिलवाएगा। बहन के आंसू निकल आए। सिर्फ 1 महीने की बात है मेरी बहन, फसी ने बहन को तसल्ली देते हुए कहा। किसी को ये ना बताना कि मैंने तुम्हें ये बात कही है। तुम 1 महीना इस खामिद को बर्दाश्त करो तो इस जहन्नुम में पड़ी रहो। अल्लाह करेगा तुम्हें रिहाई मिल जाएगी। बहन ने इससे पूछा कि रिहाई किस तरह मिलेगी, लेकिन फसी ने इसे असल बात न बताई। बहन को भाई पर एतमाद था, इसलिए वो साथ चल पड़ी। अब मैं तुम्हें असल बात बताता हूँ। फसी ने मुझे ये वारदात सुनाते हुए कहा। मैंने अपनी बहन के पगले खामिद को जहर तो दे दिया, लेकिन इससे मुझे इत्मीनान न हुआ, न खुशी हुई कि इस आदमी से जान छूट जाएगी। बल्कि हुआ ये कि जब मैं वहाँ से वापस अपने गांव चला आया तो दिल घबरा गया, जैसे किसी ने मेरे दिल को अपनी मुट्ठी में लेकर दबा लिया हो। मुझे ऐसा दलेर और निडर आदमी घबराने लगा। दिल और दिमाग में एक खौफ बैठ गया। मैंने अपने आप को बहुत तसल्लियाँ दी। किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने अपने बहन के खामिद को जहर दिया है, ना ही इसने फ़ौरन मर जाना है। सन्यासी ने यकीन दिलाया था कि इस जहर का किसी को सुराग नहीं मिलता, लेकिन मेरे दिल पर खौफ की जो जड़ आ गई थी वो ढीली नहीं पड़ रही थी। वो तो जवानी का वक्त था जब फसी अहमद दूर समंदर में मुझे दास्तान सुना रहा था। इस वक्त नफ्सियात की और इंसानी फितरत की मुझे और फसी को सूझबूझ नहीं थी। आज बुढ़ापे की इस उम्र में जब मैं किताबों के समंदर में गोते लगाता रहता हूँ, मुआशरे का और इंसानों का तज्जिया कर सकता हूँ। फसी ने कहा था कि वो दलेर और निडर है। इंसानी नफ्सियात कुछ और कहती हैं, दलेर और निडर होना कुछ और बात है, लेकिन किसी इंसान की जान लेना बिल्कुल ही मुख्तलिफ अमल है, जिसका फितरी दलेरी के साथ ज़रा सा भी ताल्लुक नहीं। एक बुज़दिल आदमी भी कत्ल कर सकता है, लेकिन कत्ल के बाद इसकी हालत हो जाती है कि वो दुआएं करता है कि वो अपने आप को भी कत्ल कर दे। दलेर और निडर आदमी का रद्दमल कत्ल के बाद ऐसा ही होता है। फसी ने मुझे सुनाया कि रोज़ बरोज़ इसकी बेचैनी बढ़ती गई और हालत यहाँ तक पहुँच गई कि रात गहरी नींद से उस तरह जाग उठता जैसे किसी ने इसको जगाया हो। वो अपनी हालत किसी को बताता नहीं था। 6-7 दिन गुजरे। इसकी बहन के ससुराल से इत्तला आई कि बहन का खामिद बीमार हो गया है। फसी, इसका बाप और इसकी माँ इस वक्त बीमार कुर्सी के लिए रवाना हो गए। वहां जाकर देखा तो मरीज का रंग जर्द पड़ गया था और इसे मतली महसूस होती थी और हल्का हल्का बुखार भी था। इलाज गांव का एक हिंदू हकीम कर रहा था, जिसकी माँ बहुत शोहरत थी। फसी अपने बाप और माँ के साथ अगले रोज वापस आ गया। 3-4 दिनों बाद फसी फिर घर वालों को यह बता करके वो बहन के खामिद को देखने जा रहा है चला गया। इसे बताया गया कि हकीम ने यरकान की तशखीस की है। लड़के की हालत पहले ही ज्यादा खराब थी। इसकी आंखें पीली पड़ गई थी और जिस्म का रंग हल्दी जैसा हो गया था। सारी अलामात यरकान की थी और इलाज भी यरकान का हो रहा था। फसी को अगर खुश नहीं तो मुतमिन हो जाना चाहिए था कि इस जहर के मुतालिक सन्यासी की बात बिल्कुल सही साबित हो रही थी। यरकान तो एक आम मर्ज है जो न जाने कब से इंसानों को लाहिक हो रहा है, लेकिन फसी के अंदर जो बेचैनी थी वो पहले से ज़्यादा हो गई और खौफ की गिरफ्त और ज़्यादा मजबूत हो गई। इसने मुझे सुनाया कि वो कुछ देर मरीज के पास बैठा इसे तसल्लियाँ देता रहा। मरीज बार बार फसी की तरफ देखता और फसी यूँ डर जाता जैसे मरीज इससे कह रहा हो, मुझे तुमने बीमार किया है और तुम ही मेरे कातिल हो। फसी वापस अपने घर आ गया। इसका सिख दोस्त इसका राजदान था। वैसे भी इनका आपस में बहुत प्यार था। फसी ने अपने दोस्त को बताया कि अंदर से इसका दिल और दिमाग की क्या हालत हो रही है। इस सिख दोस्त ने इसे बहुत सलियाँ दी और यह भी कहा कि इसके साथ धोखा हुआ था और इसने जो कुछ किया है अपनी बहन की निजात के लिए किया है और ये बिल्कुल जायज़ है। इसने यह भी कहा कि धोखा देने वालों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। फसी की कुछ तसल्ली हुई, लेकिन जब वो अकेला बैठा तो इसकी हालत फिर बिगड़ गई। फिर वो दिन आया जब इसकी बहन के ससुराल से एक आदमी इत्तला लेकर आया कि इसकी बहन का खामिद फौत हो गया है। फसी को यूँ लगा जैसे इत्तला लाने वाले इस आदमी ने इसके दिल में खंजर उतार दिया हो। वो जवान आदमी था, इसलिए इसने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन इसकी हालत कुछ ज्यादा ही गैर हो गई थी। वो अपने माँ बाप के साथ बहन के ससुराल गांव पहुंचा और कफन दफन वगैरह के बाद वापस आ गया। इसने अपनी बहन के चेहरे पर इत्मीनान और खुशी के तासुरात देखे थे। बहन के साथ इसे बात करने का मौका नहीं मिला था। बहन को इसने जरा दूर से देखा था। इसकी बहन को रिहाई मिल गई थी, लेकिन इसने अभी इद्दत के 3 महीने ससुराल में ही गुजारने थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात,
یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے پلان بی کی جاسوس سیریز۔ اللہ حافظ۔